Hello, good morning everybody. This is Vishwamitra sir. Today we have got a poem. That one is Waiting for Nothing. This poem is written by Frederick Douglass Harper, and he want to just motivate us and everybody. I mean, he want to motivate to everybody, every readers, each and every readers. So let's understand what does poet say to us. Okay, here is a warm up. It means what is your career goal? Discuss any three with your elbow partners. I mean, somebody has a definitely everybody has a goals. Someone want to become a doctor, someone want to become a teacher, like this, become an engineer, doctor, policeman, IAS, IPS, such type of the things they decided. I will become this things in my futures. So everybody decided there is a goal in their lives. So in the same way, poet addressed to every reader, each and every readers, and motivate them. There is no need to just motivate there is no need to motivation of others. You should have to motivate yourself. Okay, it means we need self motivation, self empowerment. Okay, there is two things is very necessary to become successful. Okay, so this is true things, because if no one have a self motivations, self esteems, okay, self respect, I mean, they cannot get success in his life, because this one is the key of success. These are the key of the success we should always keep in our life. So my dear, the poet says, if you have a goal, then we should be self motivated. Okay, and we shall be self empowerment. Whenever we will become awake, we should motivate ourselves. There is no need to the other motivation. Okay, so what does the poet says? Let's understood. The poet addresses, please, my friends, don't stand there at the starting blocks with an empty heart and worry on your mind, because no one yet has been carried to the finish line. The poet says, पोइट जो है एड्रेस कर रहे हैं, आई मीन हम लोग को बोल रहे हैं, यानी कि अपने दोस्त को भी, ये मैंने एक लेटर लिखे हैं जो दोस्त को बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पर रीडर को बता रहे हैं. यहाँ पर दोस्त कौन हुआ, यानी कि पोइट जब पोएम लिखे हैं तो रीडर को ही नहीं लिखे हैं, तो रीडर को बता रहे हैं कि मेरे दोस्त, निवेदन कर रहे हैं अपने दोस्त, हम लोग रीडर से, कि मेरे दोस्त, डोंट स्टैंड देयर एट द स्टार्टिंग ब्लॉक, यानी वहाँ नहीं खड़ा होना है जहाँ पर स्टार्टिंग ही ब्लॉक, यानी कि अपनी इम्पटी हार्ट वरी रखना, अपने माइंड को मतलब टेंशन में रहकर कोई काम को नहीं करना चाहिए. यहाँ पर कहने का मतलब ये, कोई किसी चीज़ की शुरुआत जो है वो टेंशन या फिर खाली दिमाग को रखकर नहीं करना चाहिए. आई मीन पॉजिटिव चीज़ों को लेकर काम करना चाहिए. वहाँ से वैसी चीज़ को शुरुआत नहीं करें, वहाँ पे खड़े नहीं हो जैसे कि कोई स्टार्टिंग ही ब्लॉक हो. ठीक है, क्योंकि बता रहा है कि बिकॉज नो वन येट हैज़ बीन कैरिड टू द फिनिश लाइन, क्योंकि आज तक देखिए ऐसे बोल रहा है कि इम्पटी हार्ट किसी का नहीं है, वरी ऑन योर माइंड नहीं रखना है. यहाँ पे ये नेगेटिविटी चीज़ को कर रहा है कि दूर करना है ना, क्योंकि ये बोल रहा है कि नो वन येट, अभी भी कोई भी कैरिड नहीं किया है फिनिश लाइन को, मतलब फिनिश लाइन पे कैरिड नहीं किया है, वहाँ तक नहीं पहुँचा है. यानी कि आप समझ सकते हो कि कोई भी अभी तक इस लाइफ में परफेक्ट नहीं हुआ है, बट वी शुड कीप
इन आवर पॉजिटिविटी, खाली माइंड को नहीं रखना है, पॉजिटिविटी को रखना है इन आवर माइंड, ठीक है। टेंशन में होकर कोई कार्य को नहीं करना है। तो इस तरीके से आप समझ गए, कोई भी इंसान इस दुनिया में अभी तक परफेक्ट नहीं है। अब देखिए दूसरी बात कर रहे हैं, दूसरे स्टेंजा में हमें द अदर स्टेंजा द पोएट सेज, पहले स्टेंजा में क्या बोला कि आपको स्टार्टिंग ब्लॉक पे नहीं खड़ा होना है ना, अपने इम्पटी हार्ट के साथ और वरी माइंड के साथ आपको नई स्टार्टिंग ब्लॉक पे खड़ा रहना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा जो रखा है वो कभी भी सक्सेस नहीं हुआ है, फिनिश लाइन पे नहीं पहुंचा है। तो अगर आपको फिनिश लाइन पे पहुंचना है तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी को अपने हार्ट में रखना है और टेंशन में होकर नहीं कोई काम करना है, ठीक है। पोइट सेकेंड लाइन में बोल रहे हैं कि accomplishment is yours only if you put your head to it and your heart in it. The body will follow. Place your scope on the goal. यहाँ पे accomplishment का मतलब हो गया कि जैसे achievement, यानी कि पोइट कह रहे हैं कि अचीवमेंट जो रहेगा वो आपका रहेगा, लेकिन कब अचीवमेंट आपका रहेगा, कह रहा है कि ओनली इफ, केवल आप यू पुट योर हेड इन इट, यानी कि अपने दिल और दिमाग को इस पे रखेंगे, अपने गोल पे रखेंगे, अपने गोल पे फोकस रखेंगे, अपने काम को करते रहेंगे और उस पर अपने फुली इवन ऑनेस्टली डेडिकेटेड होकर वर्क को करते रहेंगे, मतलब दिल और दिमाग को वहाँ पे फोकस पूरा अटेंटिवली होकर वर्क करेंगे, तो आपका बॉडी, द बॉडी विल फॉलो, यानी कि आपका बॉडी भी उसके बाद फॉलो करेगा उस चीज़ को, ठीक है। और प्लेस योर स्कोप्स ऑन द गोल, और अपॉर्चुनिटी मिले, आपका अपॉर्चुनिटी जब भी लाइफ में मिले तो आप अपने गोल पे फोकस करके वर्क करें इसको, ठीक है। पोइट के सेकंड स्टेंजा का कहने का मीनिंग यही है। थर्ड में कहता है, थर्ड वाला और ज़्यादा मोटिवेशनल है, आई मीन वी शुड अंडरस्टैंड दिस, द थर्ड स्टेंजा, Shut your hand to the dust and kick with all your might. Might, it means power. For victory will never come by standing around waiting to be carried, standing around waiting for nothing. यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि जो आपका गोल है ना, वहाँ पे गोल पे कह रहा है कि शेट करो अपने हैंड को, शेट करो अपने हैंड को डस्ट पे। डस्ट का मतलब क्या है कि बैटल फील्ड में जब आप उतर गए हो तो अपने हैंड को, यानी कि अपने, जैसे कि यहाँ पर एक पिक दिखाया गया है ना, मैं फोटो दिखाया गया है कि एक रनर एथलीट बैटल फील्ड में, आई मीन प्ले ग्राउंड में उतर गया है, ठीक है। तो उसी तरह अपने हैंड को शेट करो, मतलब सेट अपने हैंड को करो कि ये काम करना है, माइंड को मेकअप करो और वहाँ पे उतरो टू द डस्ट पे, और पूरी ताकत के साथ किक करो। किक का मतलब कि अपने पूरे एफर्ट को शो करो वहाँ पे विक्ट्रीज के लिए, यानी अपने पूरी लगन के साथ बैटल फील्ड में उतरो, ठीक है। यानी कि युद्ध के मैदान, आई मीन अपने जो लाइन के लिए तुम तैयारी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उस काम के लिए पूरे सच्ची लगन के साथ वहाँ पे उतरो, ठीक है, और पूरी ताकत के साथ उस काम को करो, ठीक है, विक्ट्रीज के लिए, विजय हासिल करने के लिए, सक्सेस के लिए, ठीक है। विल नेवर कम बाय स्टैंडिंग अराउंड वेटिंग टू बी कैरिड, स्टैंडिंग अराउंड वेटिंग फॉर नथिंग। केवल इधर उधर रुकने से नहीं होगा, स्टैंडिंग खड़ा होने से नहीं होगा, है ना। ये सक्सेस ऐसे नहीं मिलता है, इधर खड़ा होना, चारों तरफ खड़ा होना, है ना। और किसी का वेट मत करो, अपॉर्चुनिटीज़ या फिर किसी और चीज़ का, अपॉर्चुनिटीज़ का तो वेट करते रहना चाहिए, कब आए। हम अपने गोल के लिए उस गोल को फोकस करें, आई मीन, और क्रैक करें अपने समय पे, मतलब किसी दूसरे का वेट ना करो, ठीक है। आसपास किसी के खड़े होने से हमें सक्सेस नहीं मिलती है, सक्सेस हमें मेहनत करने से मिलती है, अपने काम के प्रति फोकस करने से मिलती है, ठीक है। पोइट के कहने का अर्थ यही है कि अपने पूरी सच्ची पहले डिटरमाइन करें मुझे करना क्या है, ठीक है, पहले डिटरमाइन कर लें कि मुझे करना क्या है, और जब हमारा गोल फिक्स हो जाए तो उस पर पूरे सच्ची और लगन के साथ
उस पर वर्क करें, है ना, और पूरी ताकत के साथ अपने मेहनत को करें सो डैट वी कैन गेट सक्सेस। ओके, तो पोइट यही कह रहे हैं कि इधर उधर घूमने से, इधर उधर किसी के बहकाने से, सुनने से, किसी की बात से सक्सेस नहीं मिलती है। सक्सेस आप अपने गोल को सेट करके वर्क करें उस पर, ठीक है, और वर्क भी कैसे करें, पूरी डेडिकेटेड होके वर्क करें, है ना, तो आपको सफलता मिल जाएगी। ये हमारे फ्रेडरिक जी डगलस हार्पर जी ने बोले थे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ज्वाइनिंग मी। ओके।